السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی فرمان رضا بدایوں شریف سے آج میں حاضر ہوں ایک اور سچی حقیقت کے ساتھ میں عشق رسول پر یہ بیان رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل میں بیان سے پہلے بھی یہ دعا کروں گا اللہ اس پر مجھے بھی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح درست طریقے سے چلنے کی، اور آپ سب کو بھی۔ اس سے قبل میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ کل کی آپ کی محبت دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ملی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس میری خوشی میں جو لوگ شامل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعليه وصحبه وبارك وسلم عليه، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، یعنی اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضرات دیکھیے، محبت کا نام خالی یہی نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ دیا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، زبان سے نعرہ ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور دیگر برے برے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے، روزے چھوڑ رہے ہیں، دعویٰ یہ ہے بغیر عذر کے روزے چھوڑ رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ صحیح معنوں میں یہ تو محبت کا مذاق ہے۔ محبت آپ لوگ کرتے ہیں، اکثر نوجوانوں کے اندر میں نے محبت دیکھی، لیکن یہ والی محبت نہیں۔ میں آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں اس طرح کا انسان ہوں، لیکن بھائی سب کے پاس میں سارے مسئلے آتے ہیں، میرے پاس میں بھی لوگ مسئلے مسائل لے کر کے تھوڑے بہت آ جاتے ہیں، ویسے میں کچھ جانتا وانتا نہیں ہوں، لیکن جو بھی کچھ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ بہرحال لوگ محبت کرتے ہیں، کوئی کسی لڑکی سے کر رہا ہے، کوئی کسی لڑکی سے کر رہا ہے، یہاں تک محبت کمزور ہو گئی کہ لوگ اپنی ماؤں کی محبت بھی بھول گئے، اپنے والدین کی محبت بھول گئے، اپنے بھائی بہن کی محبت کو بھول گئے، اپنے اماموں کی محبت کو بھول گئے، جو اچھی راہ دکھاتے ہیں ان لوگوں کی محبتوں کو بھول گئے۔ لیکن محبت اگر کسی سے پوچھو تو وہ انسان بتاتا ہے کہ میری محبوب فلاں گلی میں رہتی ہے یا فلاں شہر میں رہتی ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ تمہیں ایسے بال نہیں ایسے کٹانے، تو دنیا زمانہ اس شخص کی ہنسی بنائے لیکن بال ویسی کٹائے گا جیسے اس نے کہا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں کھانا جو ہے رات کو لیٹ کھاتی ہوں، ویسے کھاتا تھا 7-8 بجے، لیکن اب اس لڑکی نے کہہ دیا نا تو وہ کھانا 12 بجے کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور یہی کہے گا ارے مجھے بھی اسی ٹائم بہت پسند ہے۔ یہ محبت تو کر رہا ہے اپنی زندگی میں، کسی کو فالو کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کی ذات کو نہیں۔ اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو ایسا نہیں کہ خالی ہماری محبت نعرے لگانے کے لیے ہو، یہ محبت صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے۔ محبت کا اصل نام یہ ہے کہ جو محبوب کو پسند ہو وہ ہم اپنے اندر فالو کریں، اس
चीज का नाम मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुब्बा पसंद किया या इस तरह के कुर्ते पजामे जैसी चीजें पसंद की होंगी, इसके बारे में मेरे पास दलाइल नहीं है, अभी मैंने देखा भी नहीं है फिलहाल में, लेकिन जुब्बे के दलाइल हैं मेरे पास, पसंद किए हैं। आज कौन शख्स पहनना चाहता है, और सफेद कलर का ज्यादातर पसंद किया है। अगर किसी को पहनाओ ना तो पहनने से पहले कहता है यार क्या फकीरों वाला लिबास दे दिया। नबी को दाढ़ी पसंद है। अगर किसी शख्स से कहो ना कि दाढ़ी रख ले तो क्या कहेगा कि अभी शादी हो जाने दो, इंशाल्लाह रख लूंगा। शादी के बाद कहेगा अभी जरा थोड़ा सा सेट होने दो, इंशाल्लाह रख लूंगा। उसके पास सिवाय तारीफ के कुछ नहीं होगा। आजकल के लोग माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरह के मिल रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम की मुशाबियत करे इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। अभी मैंने पीछे बताया था ना, मोहब्बत का नाम अपनी जिंदगी में महबूब की जिंदगी को फॉलो करना है। और मैंने अब यह हदीस भी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। आज हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, क्या इस पैंट शर्ट के बारे में कभी हमने तलाशा ये पैंट शर्ट है किसका लिबास? अगर ये ईसाइयों का लिबास है तो कयामत के दिन तुम्हारा हश्र ईसाइयों के साथ होगा। अगर ये यहूदियों का लिबास है तो तुम्हारा कयामत के दिन हश्र यहूदियों के साथ होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये इस्लाम का लिबास तो नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई लगता भी है जिनकी जुबानों से कि इश्क है। अक्सर नबी के वाकयात में सुनाता हूं तो कुछ लोग हैं मेरे दोस्तों में ऐसे जो रो जाते हैं, लेकिन अगर उनके बात पहनावी की जाए, बात गाड़ी शरीफ की जाए तो वो बस यही नारा देते हैं, हजरत थोड़ा सेट हो लें उसके बाद रख लेंगे। ये मोहब्बत का नाम नहीं। मोहब्बत में एक मिनट की जुदाई, एक मिनट की इनकारियत गवारा नहीं होती है। आपका महबूब अभी आपसे कह दे फोन करके कि भाई आ जाओ, तो तुम ये अंजाम को नहीं सोचोगे कि भाई इसका अंजाम क्या होगा, इसके वालिदैन ने या भाई बहन ने किसी ने देख लिया तो हमारा हश्र क्या बनना है, वो नहीं सोचते हो। लेकिन जिस मोहब्बत का हश्र जन्नत है, जिस मोहब्बत का हश्र अमान है, जिस मोहब्बत का हश्र इज्जत है, उस मोहब्बत के बारे में नहीं सोचते। अगर अपने आप को कामयाब करना है तो ये झूठी मोहब्बत के नारे लगाना छोड़ दें। ये झूठी मोहब्बत तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। असल और सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह उससे बदल तुम्हारी दुनिया भी जन्नत है और आखिरत भी जन्नत है और कब्र भी जन्नत है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पूछते हैं, उमर तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह मैं सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और उसके बाद अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यदुल्लुनकुम अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। अब मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, मुसलमान होने के लिए खाली ये कहना काफी नहीं कि मैं मुसलमान हूं। मुसलमान होने के लिए खाली कलमा पढ़ना काफी नहीं है कि मुसलमानियत की दलील मिल जाए आपकी। मुसलमान होने के लिए आपका मुस्लिम नाम होना जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो। मुसलमान होने के लिए आपके वालिदैन का मुसलमान होना जरूरी नहीं, बल्कि मुसलमान होने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी और जिस चीज के बगैर कोई भी चीज कामयाब नहीं, वो चीज है इश्क रसूल। अगर इश्क रसूल है तुम्हारे दिल में और तुम्हें लगता है कि मैं नबी की सुन्नतों को जिंदा करता हूं, अपने अंदर फॉलो करता हूं, तभी तुम मुसलमान हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी है तो कोशिश करो उस कमी को दूर करने की। देखिए मैं बड़ी थोड़ी सख्त बातें बोल जाता हूं, उसके लिए आप लोगों से मैं माजरत करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, एकदम कोई फॉलो नहीं कर सकता, मैं मानता हूं। हल्के हल्के कोशिश करो, बहरहाल ये समझ के कोशिश करो कि भाई
आने वाले पल का हमें भरोसा नहीं, हमारा कब इंतकाल हो जाए। कब्र के अंदर 3 सवाल होते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तकूनु फी शान हाज़ा रजुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जाती है और पूछा जाता है इस शान के बारे में, तू दुनिया में क्या कहा करता था। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये 3 सवाल हाफजा करके यहां से चले जाओ और काम बन जाएगा। अगर आपकी कब्र पर कोई बताने के लिए भी बैठे ना, तो भाई मन रब्बुका, तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, और इस शान के बारे में तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करता था, बात तो बनेगी, लेकिन मुकम्मल बात नहीं बनेगी। यहां अगर बात बन गई कि मेरा रब अल्लाह है, तो फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब अगर अल्लाह है तो तू ये बता, तूने अल्लाह की इबादत कितने वक्त की थी, अल्लाह की इबादत कितनी की थी। वहां हम लाजवाब हो जाएंगे अगर नमाज नहीं पढ़ी होगी। इसी बात की बुनियाद पर ही तो उलमा इकराम पूछते कहते हैं कि कब्र में जो पहला सवाल होगा, जिस चीज का हिसाब किताब होगा या हश्र में, वो नमाज के बारे में होगा, इसलिए कहते हैं। दूसरा सवाल होगा मादीनों का, हम लोग मान लो कह भी दें कि हमारा दीन इस्लाम है, कुछ तो बात बनेगी लेकिन मुकम्मल फिर भी नहीं बनेगी। कहेंगे अगर तेरा दीन इस्लाम था तो तू ये बता, तूने कुरान के कितने अमलों पर अमल, कितने हुक्मों पर अमल किया था, दीन की तूने कौन कौन सी चीजों पर अमल किया था और कितना तू दीन में चला था। क्या जवाब दोगे? हम फिर फंस जाएंगे। फिर तीसरे सवाल पर जब पूछा जाएगा इस शान के बारे में क्या कहता था, अगर हम में से कोई नाथखां गया तो वो कहेगा कि मैं तो मालिक ही कहूं कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो बन गई। लेकिन वहां पर अगर नबी ने पूछ लिया कि तू मुझे मालिक मानता था, अल्लाह का महबूब मानता था, ऐ मेरे उम्मती तूने कितनी मेरी सुन्नतों को जिंदा करके आया है, क्या जवाब दोगे? कौन सा मुंह लेके जाओगे मुस्तफा के सामने? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी कड़वी बातें अगर आपको लगी तो उनके लिए मैं माजरत करता हूं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह असली दीन की तरफ आएं और इश्क रसूल सही मायनों में अपने दिलों के अंदर जिंदा करें, ना कि नामों वाला कि भाई आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, अभी बहुत नारा चला था ये। तो उन लोगों से पूछता हूं मैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नाराज ना होना, आई लव मोहम्मद तो कहते हो, मोहम्मद से किस तरह का ये तुम्हारा लव है? आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हो, कपड़े यहूदियों की तरह पहनते हो। आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हो, दाढ़ी मूछे किसी और की तरह कटा करके रहते हो दाढ़ी शरीफ को। आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हो, झूठ बराबर बोल रहे हो, ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत है, अगर वाकई आप उनसे लव करते हैं, तो उनकी सुन्नतों को अपने अंदर जिंदा करें। कोशिश करो हल्के हल्के, एक एक करके ही सही, देर से ही सही, कैसे भी करके सही, आप सुन्नतों पर अमल करो। और सबसे खास चीज मेरे दोस्त, नमाज फर्ज भी है और सुन्नत भी है। सुन्नत ऐसे है कि नबी करीम ने अदा की, फर्ज ऐसे है कि अल्लाह का हुक्म है। तो नमाजें, खुसूसन नमाजों का ख्याल रखो और इस बात पर शर्म ना करो कि हमारी दाढ़ी शरीफ नहीं है, बल्कि दाढ़ी को रखाओ, बड़ा करो अपनी दाढ़ी शरीफ को। ये शर्म ना करो कि भाई दाढ़ी शरीफ होगी तो कोई बिठा लेगा नहीं, बुजुर्गों में बैठना पड़ेगा। अरे बुजुर्गों में बड़े तो ही बैठते हैं, आवारा लोग थोड़ी नहीं बैठते। और बुजुर्ग लोग आला होते हैं, इसलिए उनके पास तुम्हें बैठने का मौका मिलेगा। जब यहाँ पर तुम इस तरीके से रहोगे दाढ़ी शरीफ रखा करके और बुजुर्गों के साथ बैठने का, अपने बड़ों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला गैरतमंद बादशाह है, वो कहेगा इस बंदे को दुनिया में इतनी इज्जत दी है मैंने, ये बुजुर्गों के पास बैठता था, ये अपने से बड़ों के पास बैठता था, यहाँ पे भी मैं इसे इज्जत देता हूँ और जहन्नम में नहीं डालूंगा, अब जन्नत में डाल देता हूँ। तो इन चीजों का ख्याल करना चाहिए और इश्क़ रसूल अपने अंदर हकीकी मायनों में फॉलो करो। जो नबी का अच्छा किरदार है वो जमाने के सामने लाओ, ताकि जमाने वाले जो इल्जामात देते हैं, हालांकि उनके इल्जामात देने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम ये जाहिर करके दिखाओ कि ये तुम्हारे इल्जामात झूठे हैं, बल्कि हमारे नबी का किरदार तो ये है। या अल्लाह, मुझसे बोलने में जो गलतियां हुई, जो खामियां हुई हैं,
اپنے معاف عطا فرما. میں انشاءاللہ اس پر بہت لمبا بیان کرتا لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, پھر آپ لوگ سن بھی نہیں پائیں گے اور یہاں سے مجھے اپلوڈ کرنے میں بھی دقت ہوگی. اس لیے میں یہیں اس بیان کو اختتام کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا ان ساری چیزوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم.